A very good morning to all of you and I hope that you all must be doing great. So आज के NASA's वीडियो स्टार्ट करते हैं for 13th of September. So Nipah virus outbreak again केरला में देखने को मिल रहा है. 2 people have died because of this. So as a case study जब आप इस पूरे सिनेरियो को समझोगे, it can come up in ethics paper also. Like as a DM आप क्या steps ensure करोगे that you will be able to control the spread of this virus. So 2 people have been infected. यहाँ पे you can see district it has been put on high alert. Center support important हो जाता है. They have sent the expert team for the assistance. State government का role क्या है? They have opened up the control room. They have set steps up the surveillance and contact tracing. तो ये दो important चीजें surveillance and contact tracing in order to further prevent the spread of this virus. And Nipah virus जो है कि zoonotic disease है. ये basically bats और pigs से humans में transmit होता है. And then human to human transmission ये भी confirm किया जा चुका है. इसके अलावा आप बात कर सकते हो role of social media in terms of awareness generation, daily updates की situation कैसे improve हो रही है, so that becomes important. Then retail inflation की बात करें तो it eases, so this is good news कि retail inflation अगर हम बोल रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं consumer price index की. The next question आपके mind में ये आना चाहिए कि food and fuel prices क्या CPI के अंदर included होते हैं? तो yes, they are a part of the calculation of CPI. इसके अलावा you need to know about the difference between headline inflation and the core inflation. Then we see कि food prices जो है still अभी हमारे लिए concern है. तो retail inflation it has reduced to 6.83% from a high of 7.44%. So this is the update at the inflation front. Apart from this, Libya city में we are seeing flash floods. So climate change impacts globally हमें देखने को मिल रहे हैं in different forms. कुछ दिन पहले हमने देखा था हांगकांग में भी floods देखने को मिल रहे हैं. So यहाँ पे लिबिया में भी flash floods and even in case of India अगर आप बात करो कहीं पे drought है, कहीं पे again flash floods, cloud bursts हो रहे हैं, landslides हो रहे हैं. Specifically अगर हम hilly states की बात करें तो these are different kind of impacts and जो इनकी intensity है, frequency है, that is also increasing with time. तो वो सबसे बड़ा concern है. So G20 summit again, we are done with the G20 summit and उसके ड्यूरिंग जो भी अपडेट्स आ रहे थे, जो भी अगेन इंपॉर्टेंट एरियाज थे, डेवलपमेंट्स थे जिस पर G20 ने फोकस किया, वो हम कवर कर चुके हैं. अब G20 के बाद क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो वन ऑफ द एरियाज क्या लेसन्स हमने लर्न करे ड्यूरिंग द G20 समिट. स्पेसिफिकली अगर हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात करें पुलिस के पर्सपेक्टिव से, सो इट्स कि ऑब्वियसली जो लेसन्स उन्होंने सीखे, जो लर्न किए, जो उनका एक्सपीरियंस रहा, दे वुड बी यूजिंग दैट after the G20 summit as well. So they need to work out proper traffic plan. Entire city का होना बहुत important है क्योंकि obviously traffic curbs लगाए गए थे so as to ensure the security of dignitaries visiting India. And apart from this, they will continue issuing advisories about alternative routes क्या हैं. तो again advisory about alternative routes traffic management में बहुत important role play कर सकती है. And here you can see an interview from the Special Commissioner of Police Traffic. So his experience he has been sharing and जो important चीजें निकल के आई again traffic management, एक traffic plan होना चाहिए, alternative routes पता होना चाहिए लोगों को so that जो traffic congestion की problem है specifically दिल्ली के अंदर, तो उसको हम अच्छे से deal कर सकें. So basically people need to learn more and good traffic sense, and that obviously it is applicable for the authorities as well. तो वुमेन पावर अगेन आज के टाइम में बहुत बात करते हैं वुमेन लेड डेवलपमेंट की. वुमेन का इंपॉर्टेंट रोल क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट में कैसे हो सकता है, मिटिगेशन में एंड अडेप्टेशन में. देन पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, या स्पेसिफिकली दिस इज एडवर्टाइजमेंट स्पेसिफिकली फॉर द स्टेट ऑफ हरियाणा. तो वहां पे अगेन क्या अचीवमेंट्स रही, दे हैव बीन लिस्टेड डाउन हियर. 50% पार्टिसिपेशन पंचायत में वुमेन का देखा जा रहा है. बट एट द सेम टाइम अगर ये गुड पिक्चर है तो आपको पीछे की रियल स्टोरी भी पता होनी चाहिए, या यू नीड टू क्रिटिकली थिंक अबाउट ईच एंड एवरी डेवलपमेंट कि क्या वो रियल सेंस में हुआ है कि नहीं हुआ है. क्योंकि जब आप वुमेन पार्टिसिपेशन पंचायत में बात करते हो तो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ सरपंच पति. Then we see कि 33% ration depots they have been reserved for women. Free education and transportation services for all the girl students up to post graduation. This has been ensured. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ program, this is very famous one. Government colleges open किए गए हैं and only for the girls schools. So that is also going to again
increase the enrollment rate of the girl students, financial assistance up to 6,000 rupees provide की जा रही है to 8 lakh pregnant women under प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो different जो schemes भी हैं उनके features specifically in detail पता होना important है, क्योंकि ऐसे टाइप के questions prelims में definitely पूछे जाते हैं। तो अगेन यहाँ पे देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट बोल रहा है कि स्कूल ऑफ एमिनेंस इनॉग्रेशन। सो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि स्कूल ऑफ एमिनेंस की अगर हम बात करें तो क्या डिस्टिंक्ट एंड यूनिक फीचर्स है फ्रॉम द नॉर्मल स्कूल्स दैट वी आर हैविंग। सो स्कूल ऑफ हाई एंड 21st century skills and specialization. So you need to again emphasize upon the keywords that are being used. 21st century skills, high and 21st century skills and specialization. ये again मेन हम बोल सकते हैं कि चीजें जो फोकस करते हैं स्कूल ऑफ एमिनेंस। क्लासरूम्स इक्विप्ड विद मॉडर्न फर्नीचर, स्पेशलाइज्ड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए लैबोरेटरीज बनाई गई है, लाइब्रेरीज रिच कलेक्शन ऑफ बुक्स दैट कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग इनकम्पसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑल्सो एनिमेशन, वेब डिजाइन, फॉरेन लैंग्वेज स्किल्स। बेसिकली जिन स्किल्स की ज्यादा डिमांड इंक्रीज हो रही है एंड फ्यूचर में भी इंक्रीज होगी द जॉब्स एंड डिमांड, तो उसमें भी अगेन वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल्स ट्रेनिंग पे फोकस किया जा रहा है। देन स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल है, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। सो इवन स्कूल ऑफ एमिनेंस की जब हम बात करते हैं तो हम इंक्लूसिव एजुकेशन एनवायरनमेंट की बात करेंगे। देन अगेन साइमल्टेनियस सिलेक्शंस, पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं वो डेटा हम इन डिटेल critically we have examined that thing. So you guys can go through the previous analysis videos. Apart from that, you can just quickly scan through this article as well. Simultaneous elections, risk undermining democratic plurality, risk aiding the kind of concentration of the power that federalism is meant to be a bulwark against. So again, concentration of power कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी because of simultaneous elections, and it would undermine the democratic plurality, क्योंकि again जो local level पे issues रहेंगे, state level पे issues रहेंगे, उनको इतनी ज्यादा importance नहीं मिल पाएगी। So point and counterpoint यहाँ पे बात की जा रही है in this sense it has been written. So against this critics have pointed out कि जब we see you crunch the numbers and actual financial savings वो relatively reduce हो जाते हैं। तो furthermore it is a relatively recent pathology of the Indian political system कि जो central government ministers हैं, politicians हैं, they're spending significant amount of their time campaigning in the state elections. So if the concern is कि जो frequent state elections governance को hamper करते हैं, business of parliament को hamper कर रहे हैं, so simultaneous elections is a possible solution. तो ये again one of the positive outcomes हो सकता है। critiques of simultaneous elections का कहना ये है कि again कुछ objections जो उन्होंने raise किए, first तो logistical nightmare जो होगा, cost of elections increase हो जाएगी, क्योंकि जब हम बात करते हैं the about the EVMs, तो उनका again they can be used for like 15 years maximum, that is their lifetime. तो every अगर हम बोलेंगे simultaneous elections mean every 5 years elections होंगे, तो 15 years में they'll be only used 3 times, and then we'll have to again produce again all the EVMs at that larger scale. So एक इसकी वजह से cost of elections जो है वो increase हो जाएगा। Second and graver concern जो है incompatibility rigid election timetable with some of the fundamentals of the parliamentary democracy, as it is well known कि जो time of independence पे बात करें central state elections हुए थे, they were conducted simultaneously। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि post independence इंडिया में कुछ time period तक simultaneous elections ही किए गए थे। तो कहीं ना कहीं ये जो arrangement उस time पे देखा गया, उस time पे जो चीजें observe की गई, जो rigid election timetable हमने follow किया post independence, this kind of arrangement it broke down towards the end of 1960s के बाद हम simultaneous elections नहीं कर पाए, क्योंकि the use of article 356 of the constitution which authorizes the union to suspend basically, यहाँ पे हम प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट रूल बीच में इम्पोज हो गया किसी स्टेट में, तो अगेन वो जो प्रॉपर एक साइकिल थी, क्योंकि साइमल्टेनियस इलेक्शन में एवरी 5 years ही ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो तभी किए जा सकते हैं अगर एवरी 5 years वो पूरा टेन्योर कंप्लीट हो स्टेट्स में भी और
सेंट्रल लेवल पे भी। बट अगेन अगर वो मोमेंटम, वो साइकिल ब्रेक हो जाती है तो आप साइमल्टेनियस इलेक्शंस नहीं कर सकते। तो एक ये मेजर रोड ब्लॉक अभी भी है, ये मेजर चैलेंज अभी भी है कि आने वाले टाइम में आप कैसे इंश्योर करोगे कि प्री मेच्योर इलेक्शंस ना हो या प्री मेच्योर डिसोल्यूशन ना हो, या अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाता है तो अगेन आप फिर ये दो चीजें निकल के आएंगी। वन साइड आपको लेना पड़ेगा, या तो आप साइमल्टेनियस इलेक्शंस कराओगे या फिर आप आर्टिकल 356 के यूजेस कंप्लीटली बंद कर दोगे, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल फिर आप यूज नहीं कर सकते अगर आप साइमल्टेनियस इलेक्शंस को स्टिक करना चाहते हो। तो कुछ कंसर्न्स हैं। देन अगेन पॉसिबिलिटी ऑफ मोर हॉर्स ट्रेडिंग, तो ये ऑलरेडी एक कंसर्न है, इसकी वजह से ये और आगे टाइम में इंक्रीज हो सकती है। तो अपशूट ऑफ दिस इज दैट देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग पुश टुवर्ड्स अवॉइडिंग द फॉल ऑफ द गवर्नमेंट even when it has lost the confidence of the house in the ordinary course of things. So as we have seen in India also कि there is an almost institutionalized remedy for this, that is defections या horse trading को आप use करेंगे, basically kind of misusage ही है। and it is by now clear कि जो 10th schedule of the constitution है that prohibits horse trading, it has been rendered more or less a dead letter, क्योंकि जो लूप होल्स हैं उसको मिसयूज किया जा रहा है। तो इतना इफेक्टिव नहीं, जो मेन आइडिया था 10th शेड्यूल के पीछे टू स्टॉप द हॉर्स ट्रेडिंग, वो उसको स्टॉप करने में इट इज नॉट बीन दैट सक्सेसफुल और दैट इफेक्टिव। See, so we might see explosion of horse trading coming forward if we go ahead with simultaneous elections. So analyzing where India stands in G20, यहाँ पे हम फैक्चुअल चीजों को देखेंगे, फैक्चुअल डेटा। फर्स्टली वी सी जीडीपी पर कैपिटा इंडिया की 1917 में 1970 के टाइम में इट वाज अराउंड $100। देन यहाँ पे अगर हम बात करें 2022 में, तो हमारी जीडीपी अभी हम वी आर जस्ट रीच $2400। तो बेसिकली ये इंडिया की लोएस्ट G20 के अगर हम सारे मेंबर्स से कंपेयर करें जीडीपी पर कैपिटा, तो इंडिया लोवेस्ट लेवल पे है। बट अफ्रीकन यूनियन आने के बाद अफ्रीकन यूनियन में जो जीडीपी पर कैपिटा है वो लोएस्ट लेवल की है। तो वी कैन से कि अगेन इंडिया वन ऑफ द लीस्ट 10 कंट्रीज में आती है जब हम बात करते हैं जीडीपी पर कैपिटा इन G20। देन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 में अगर देखें तो इंडिया का स्कोर था 0.43, अगेन वो लोवेस्ट था। एंड 2021 में अगर हम देखें तो स्टिल वी आर एट द लोवेस्ट लेवल, इट इज increased up till only 0.63. Apart from this, labor force participation rate 1990 में India was it was somewhere in, we can say कि इंडिया से पीछे सऊदी अरेबिया और इटली थे। सो दिस वाज अ कंडीशन। एंड आज के टाइम में आप देखोगे कि इंडिया की पोजीशन कहाँ है, तो वी कैन से कि कहीं ना कहीं हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो रिड्यूस हुआ है। एंड यू कैन सी कि इंडिया पीछे की तरफ मूव हुआ है, तो वी आर अगेन एट द लोवेस्ट लेवल। इटली और इंडिया को ऑलमोस्ट सेम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। देन लास्ट चार्ट इज वुमेन इन द पार्लियामेंट। तो वुमेन पार्टिसिपेशन की हम बात करें तो यहाँ पे 1970 में यू कैन सी इंडिया वाज समवेयर, यू कैन फॉरवर्ड फ्रॉम 4 कंट्रीज, 4 मेंबर कंट्रीज। एंड वी सी कि 2022 में अगर हम देखें, सो अगेन इंडिया पीछे मूव हुआ है, या बोल सकते हैं कि इंडिया आगे मूव हुआ, बट कंपैरेटिवली G20 मेंबर से कंपेयर करें तो वी आर स्टिल बैकवर्ड्स। जो 3 से 4 कंट्रीज हमसे पीछे थी उनमें से 3 कंट्रीज इंडिया से आगे मूव हो चुकी हैं। तो वुमेन पार्टिसिपेशन पार्लियामेंट में वो भी वीकर लेवल पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी इंडिया सबसे लोअर लेवल पे, जीडीपी पर कैपिटल, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑल्सो। सो इन सारे डिमेंशंस में अगर आप देखोगे कि हम पीछे हैं, बट स्टिल इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी को क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सो क्लाइमेट चेंज की वजह से अगेन जो एक कंसर्न इमर्ज हो रहा है दैट इज ऑब्वियसली फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी तो बाद में आएगा, पहले फूड सिक्योरिटी का मेजर कंसर्न इमर्ज आउट हो रहा है। एंड गिवन जो पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है, तो फूड सिक्योरिटी और एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट फोकस एरिया हो जाता है। सो यहाँ पे हमारे लिए अगर हम ज्योग्राफी से टर्म्स उठाए, एल नीनो, ला नीना, ये हमें पता होना चाहिए। एल नीनो सर्दर्न ऑस्सिलेशंस, व्हाट इज दिस, इंडियन ओशन डाइपोल हमें पता होना चाहिए। सो ये यहाँ पे अगेन कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है।
सो लेट्स सी कि क्वाड का भी एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वी आर सीइंग कि साउथ कोरिया इज आल्सो कीन टू ज्वाइन क्वाड। तो ब्रिक्स एक्सपेंशन हो चुका है, G20 एक्सपेंशन हो चुका है, नाउ आवर आईज आर ऑन क्वाड। सो प्रेसिडेंट सेज कि फार्मर्स अन्नदाता हैं हमारे, इट इज इम्पोर्टेंट कि हम उनकी राइट्स एंड फ्यूचर को प्रोटेक्ट करके रखें। सो प्रेसिडेंट कॉल्ड फॉर कंक्रीट स्टेप्स टू कंजर्व द ट्रेडिशनल सीड वेराइटीज, इको फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिसेस। सो अगेन हमारा फोकस ज्यादा शिफ्ट हो रहा है ट्रेडिशनल सीड वेराइटीज पे, क्योंकि अब हम जब क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स हो रहे हैं उनसे डील करने की बात करती है, तो उस एरिया में ट्रेडिशनल सीड वेराइटीज और इम्पोर्टेंट हो जाती है जब हम बात करें कि the important property of climate resilience that we have. Eco-friendly farming भी again important है, again from the perspective of the impacts that we are seeing in the climate change front. And this is important to ensure again food security, nutrition security as well. So traditional agricultural practices को follow करना वो भी एक important area है. बिजनेस पेज पे रिटेल इन्फ्लेशन हम देख चुके हैं, दैट इज ईज्ड, एंड अगर हम जुलाई का इंडस्ट्रियल आउटपुट देखें तो दैट इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय 5.7%। सो ये अगेन 5 मंथ हाई पे रीच हो चुका है। तो इंडस्ट्रियल आउटपुट इंक्रीज हो रहा है और इन्फ्लेशन रिड्यूस हो रही है, तो ये दोनों को अगर हम कंबाइन करके देखें तो एक पॉजिटिव आउटलुक निकलती है। वी कैन से कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। सो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, माइनिंग आउटपुट श्रिंक हुआ है, बट बाय एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन देखने को मिली है, इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स दे लिफ्ट द ओवरऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो फर्टिलाइजर सप्लाईज पे चैलेंज हो रहा है ग्लोबल लेवल पे, बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर के बाद फर्टिलाइजर सप्लाई में डिस्ट्रप्शन देखने को मिला है। चाइना ने अनाउंस किया है कि वो जो अपना फर्टिलाइजर आउटपुट है या सप्लाई है उसको भी रिड्यूस करेंगे, तो अगेन डबल वैमी एट द सेम टाइम। एंड इसके अलावा अगेन अगर हम लेसन लर्न की बात करें तो वी नीड नॉट बी सो मच डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज या ऑन जस्ट वन कंट्री फॉर टू मच अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर सप्लाई, क्योंकि चाइना इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर सप्लायर है। तो अगेन चाइना के ऊपर हमारे यहाँ सारा डिपेंडेंट है। इन्फ्लेशन उसकी वजह से इन्फ्लुएंस होगा, उनके जो डिसीजंस रहेंगे उनकी वजह से इन्फ्लुएंस होगी, बट इम्पैक्ट जो होगा हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे, फार्मर्स के ऊपर, एंड अकॉर्डिंगली फिर उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। सो इंडिया श्रीलंका के बीच में अगर आप इश्यूज की बात करेंगे तो फर्स्ट इज तमिल इशू, उसके बाद आप फिशरमैन इश्यूज की बात करोगे, एंड इंडिया के क्या डेवलपमेंटल मेजर्स हम ऑलरेडी ले चुके हैं श्रीलंका में, सो वो आपको पता होना इम्पोर्टेंट है। मिंट न्यूज़पेपर में अगर हम देखें व्हाई इकोनॉमिक कॉरिडोर्स मैटर, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर हम बात करें लेटेस्ट जो अनाउंसमेंट है G20 समिट में जो देखने को मिली, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें हमने देखा जो वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर था उसको अनाउंस किया गया, तो वो बेसिकली वेस्ट एशिया, यूरोप एंड यूएस को कनेक्ट करेगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो वर्क कैसे करते हैं। तो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो टर्म है दैट वाज अनाउंस्ड या यूज्ड बाय Asian Development Bank for the first time for an integrated network of infrastructure. I would repeat, integrated network है of infrastructure, that is the basic meaning of an economic corridor, जिसमें basically rail connectivity, road connectivity, port connectivity important है. So this is defined in a geographical area which connects various economic hubs. तो क्या की टर्म्स निकल के आई, एक तो इंटीग्रेटेड नेटवर्क ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया होता है which connects economic hubs. So this is very very important definition, and basically जो इकोनॉमिक हब्स है देन दे लिंक द सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन विद द सेंटर्स ऑफ कंजम्पशन, ये भी इंपॉर्टेंट आइडिया है, सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन को कनेक्ट करते हैं विद द सेंटर्स ऑफ कंजम्पशन।
सो कॉरिडोर्स उनको हम डेवलप कर सकते हैं विद इन कंट्री ऑल्सो, लाइक इंडिया में वी हैव द दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बेंगलुरु मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर, एंड अक्रॉस नेशंस भी हो सकते हैं, लाइक चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, एंड अगेन दिस इज एन ऑल्टरनेटिव टू the BRI as well. So they are not mere सिर्फ transport connections facilitate करने के लिए नहीं होते हैं, they play much larger role by transforming the regions the corridor passes through. तो again you need to look at this thing with a wider lens, with a wider mindset, broader mindset. स्पेसिफिक बेनिफिट्स क्या होते हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के? तो स्टार्ट विद वीसी की जो सबसे बड़ा बेनिफिट निकल के आता है वो है reduction in the time and the cost of the logistics. So in a way they enable the emergence of industrial clusters also along their path, and they can catalyze economic growth. मतलब new industrial clusters भी emerge हो सकते हैं after we see the functioning of the economic corridors. So in fact some hold कि जो ये corridors हैं they can develop the regions which otherwise would have remained backward. तो इतना strong या multiplier effect इनका हमें देखने को मिल सकता है in terms of employment generation, improving the standards of living of the people. So some of the well-known economic corridors कौन से हैं? So one is 6,400 kilometer Silk Road, which links east and west for over 1400 years. जो ancient times से अगर हम example लें, today we see other than Belt and Road Initiative एक Greater Mekong Sub-Region Economic Corridor है जो कनेक्ट करता है थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस एंड म्यांमार को. तो अगेन इसका मैप वर्क भी आपको क्लैरिटी से पता होना इम्पोर्टेंट है. एंड अनदर कनेक्टिंग इज आलमटी in Kazakhstan, Bishkek in Kyrgyzstan, and the China-Pakistan economic corridor is another example. So current status Belt and Road Initiative का अगर हम देखें तो total investment जो BRI it has crossed is $1 trillion. So इतना amount already invest किया जा चुका है. And there are signs कि China slow down हो रहा है, तो again उसकी वजह से BRI की functioning पे या जो possible impacts हो सकते थे, benefits हो सकते थे, वो भी हमें देखने को मिलेंगे. तो economy slow down हो रही है, तो China it is averse to funding the large projects. तो again BRI अभी completely functional नहीं है, तो वहां पे हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक स्लो डाउन जो हमें चाइना में देखने को मिल रहा है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो कंसर्न्स हैं BRI से रिलेटेड, वी हैव सीन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, श्रीलंका, वो कहीं ना कहीं जो फंडिंग प्रोवाइड की जा रही है या चाइना के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है डिफरेंट कंट्रीज में जहाँ से BRI पास हो रहा है, तो इसकी वजह से कुछ कंट्रीज डेट में भी चली गई हैं. उसकी वजह से पॉलिटिकल टर्मोइल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है. एंड पाकिस्तान, श्रीलंका द बेस्ट एग्जांपल्स फॉर दैट राइट नाउ. मेनी नेशंस वी हैव सीन कि they have accused China of gaining strategic influence. कहीं ना कहीं चाइना इसको मिसयूज भी कर रहे हैं through these projects because again inadequate attention दी जा रही है to the local needs, disregard the sovereignty, and they have adverse environmental impact also. तो इन चीजों को कंसिडर नहीं किया जा रहा है, तो that is why China is gaining strategic influence as well. सो IMEC की अगर हम बात करें तो ये कैसे डिफरेंट होने वाला है? तो अगेन 2002 में G7 ने लॉन्च किया था पार्टनरशिप विद द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट टू फंड जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स हैं इमर्जिंग कंट्रीज के अंदर. तो वर्ल्ड 7 रिचेस्ट कंट्रीज से दे वर टू कलेक्टिवली मोबिलाइज अराउंड ए टारगेट सेट किया कि $600 बिलियन 2027 तक वो कलेक्ट कर लेंगे, and again to counter BRI. So IMEC जो it is a part of this initiative. Only US president said कि जितने भी projects fund किए जाते हैं by PGII वो transparent तरीके से funding provide की जा रही है. They will be helping in building a climate change resilient infrastructure and achieve gender equality. तो again यहाँ पे 3 चीजें क्या बात की गई? Transparency, climate change resilient infrastructure and gender equality. So इसके अलावा अगर हम बात करें रेल रोड एंड पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वी विल आल्सो हैविंग फोकस अपॉन पाइपलाइंस टू मूव द क्लीन हाइड्रोजन आल्सो. सो एक ही न्यू कंपोनेंट और ऐड किया गया है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस की अगर हम बात करें, रिटेल इन्फ्लेशन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. सो डीजल व्हीकल्स पे अगेन 10% एडिशनल लेवी लगाई जा सकती है बिकॉज वी ऑब्वियसली वांट टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स and curb the emissions from the transportation sector.
इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 5 मंथ हाई पे है, तो अभी हमने देखा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, इन्फ्लेशन रिड्यूस हुए, दैट इज अ साइन टुवर्ड्स स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ. So mining, manufacturing, electricity में कैसे growth हुई है, that you can see we have seen a sharp increase in electricity and the mining sector. तो क्वालिटी ऑफ नेशनल इनकम डेटा की अगर हम बात करें तो इसके अराउंड एक डिबेट है, बिकॉज अगेन क्वालिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है जब हम बात करते हैं आगे पॉलिसी मेकिंग की, तो सारी चीजें डिपेंडेंट है हमारे डेटा के ऊपर. तो डेटा की अगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज की जाएगी तो आने वाले टाइम में जो पॉलिसीज हैं या जो इंटेंटेड इम्पैक्ट्स हमने सोचे हैं पॉलिसी की वजह से हो सकते हैं, वहां पे हमें अगेन वो इम्पैक्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे या उतने बड़े स्केल पे वो इम्पैक्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे. सो दैट इज वाई क्वालिटी ऑफ नेशनल इनकम डेटा या जनरल डेटा आप बात करो तो दैट इज इम्पोर्टेंट. एंड अगेन अगर डेटा की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज की जाएगी तो हमें नहीं पता चलेगा कि रियल ग्राउंड पे एक्चुअली सिचुएशन है क्या. Then third International Climate Summit, it is happening in New Delhi at the Vigyan Bhavan, Voice of Industry and Trade. India-led global life movement, so different components हैं, green hydrogen, biofuels, renewables, biofuel alliance, global biofuels alliance announce की गई है G20 summit में. तो बेसिकली डिफरेंट सेशंस होंगे, यहाँ से आप थीम्स ले सकते हो, लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, ग्रीन फ्यूल, then R&D and capacity building, climate finance, sustainable cities and Nordic countries and their uniqueness towards the Indian market. तो ये एक न्यू डायमेंशन है, बाकी सारे कॉमन एरियाज है जो सबको पता होंगे, बट ये जो डायमेंशन है नॉर्डिक कंट्रीज एंड उनकी क्या यूनिकनेस है टुवर्ड्स द इंडियन मार्केट, ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, समझना एंड आइडेंटिफाई करना. So auto industry, it steps up the green energy pace. ये अभी हमने देखा कि यूनियन मिनिस्टर का कहना है कि 10% एडिशनल लेवल भी लगाई जाएगी ऑन द डीजल इंजन व्हीकल्स. सो वी आर इन ट्रांजिशन. 1.24 मिलियन इज द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो इंडिया में सो फार रजिस्टर हो चुकी है, एंड आने वाले टाइम में वी आर सीइंग कि बेसिकली यहाँ पे अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो वी आर सीइंग डबलिंग द नंबर्स. सो इंक्रीज हो रहे हैं रजिस्ट्रेशंस, बट एट द सेम टाइम जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है चीजें कोऑर्डिनेटेड तरीके से आगे होनी चाहिए, बिकॉज जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो भी कहीं ना कहीं एक हम बोल सकते हैं मेंटली हमारे माइंड में ये चीज रहती है कि वी कांट गो फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस कवरेज के लिए हम नहीं जा सकते जब ईवीज की हम बात करें, बिकॉज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेंसिटी है दैट इज वेरी लेस राइट नाउ. सो हाइड्रोजन ट्रक्स पे काम किया जा रहा है. अपार्ट फ्रॉम दिस ग्लोबल कंपनीज दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू ब्रिंग इन इलेक्ट्रिक कार्स टू इंडियन मार्केट. मतलब और डिफरेंट जो ग्लोबल कंपनीज हैं दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन एंटरिंग इनटू द इंडियन मार्केट. And fully electric vehicles coming from Mahindra, Tata Motors, Maruti Suzuki, Hyundai over next 5 to 7 years. So things are going forward, strong pace पे चल रही है, but again जो again अभी concerns है वहाँ पे भी we need to pay attention. So that's all for the day. Thank you so much for joining us. And these were all the important topics that we took up. And जो key details हमने discuss करी, dimensions हमारे लिए समझना important है किसी भी particular topic में. वो again prelims perspective से कैसे कोई topic important है, कैसे कोई data important हो जाता है, conceptual clarity important हो जाती है. Mains के perspective से हमारे लिए dimensions किसी particular topic के निकालना and again उस पे भी आपको keywords जो use करने हैं वो important होता है. So that's all, and do subscribe to the channel and stay tuned. Keep watching.